Hello students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. So today we are going to learn the different principles of insurance. In the last lecture we have understood these three principles of insurance. As I said, there are total 7 principles, and from those we have understood utmost good faith, we have understood insurable interest, we have understood indemnity, and today we would be understanding the contribution. Let's understand where the same subject matter is insured with the two or more insurers, the actual amount of loss is divided among the insurers. It applies only to the contractors of indemnity. See, what did they say कि मैंने सपोज एक ही चीज़ का अलग अलग कंपनी में से इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो एक ही जगह से मुझे इंश्योरेंस मिलता है, हर जगह से इंश्योरेंस नहीं मिलता है। या तो मैं हर जगह अगर क्लेम करूँगी तो प्रपोर्शन में मिलेगा, पूरा हर जगह से नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, बजाज एलियांज में से 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, या तो मैंने कोई और इंश्योरेंस कंपनी में से 1 करोड़ का लिया, तो हर एक कंपनी मुझे 1-1 करोड़ नहीं देगी अगर नुकसान हुआ तो। व्हाट दे डू, आइदर दे वुड बी गिविंग इन प्रपोर्शन, और आइदर तो मुझे एक ही कंपनी पैसा देगा, हर एक कंपनी नहीं देता है। Next is subrogation. Now what is a subrogation? Under subrogation, the insurer steps into the shoes of the insured after paying the amount of loss. He is entitled to exercise all the rights and remedies of the insured in respect of the damaged property and against a third party who is responsible for the loss. This is the principle of indemnity. Now what is indemnity? Indemnity, subrogation, it is like कि जिसको लॉस हुआ है, ठीक है, जो भी लॉस हुआ, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार पे कर दिया है तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी दे आर नॉट गोइंग टू पे, again they are not going to pay, number 1, and number 2, whatever the loss it's been occurred, and if they once they have paid, and second time again they won't be asking it कि पैसे पे करो, या तो जो भी नुकसान हुआ उसका उन्होंने पैसे पे कर दिया है, तो अब जो सामान है जिस पे उन्होंने पैसे दे दिए, नुकसान हुआ सामान, तो वो नुकसान हुआ सामान पे राइट किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का। तो हम बीइंग अ इंश्योर्ड, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये मेरा सामान है, आप ये सामान रख के जाइए, नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी उस चीज़ के पैसे मिल चुके हैं। नेक्स्ट इज मिटिगेशन ऑफ लॉस. It is the duty of the insured to take all the responsible steps to minimize the amount of loss in the event of mishap to the insured property. If the insured insures expense or suffers loss, in doing so he can recover the same for insurance. See, मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई नुकसान हुआ है, अब नुकसान हुआ, अगर फायर लगा तो आपके वहाँ पे सारे फायर के सेफ्टी थे, हाँ, फायर के सेफ्टी थे, और फायर लगा है तो उसका मिलता है, लेकिन फायर का सेफ्टी ही नहीं है कुछ, और फायर लगा तो उसका शायद नहीं भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इंश्योरेंस है तो चलो नुकसान होने दो, हमें कहाँ पैसे देने हैं। आपको सारे प्रिकॉशंस तो लेने ही है, प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर नुकसान होता है तो देन इंश्योरेंस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल. Next is cause proxima. It means, see, this cause proxima, it is in the CBSE, it is not in GSEB. So this is for whom? This is for the CBSE students. It means the proximate or nearest cause. If there are more causes of loss, the principle of causa proxima is followed. The causes of loss may be remote causes and immediate causes. The insurer is liable only if insured risk is the proximate or immediate cause of loss. If the insured risk is considered only as a remote cause, the insurer is not liable to compensate for the loss. देखो, अगर वो मतलब कोई नेचुरल कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, नेचुरल नहीं है, ऐसे ही प्रॉक्सिमेट, मतलब हम क्या बोलते हैं कि फायर लग गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया और उसकी वजह से हमको मिला है तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के अगर कुछ किया है तो उसका हमको नहीं मिलेगा। और जिस चीज़ के लिए हम जिस प्रॉक्सिमेट, उसका मतलब आप बोल सकते हैं प्राइम, ठीक है, जिस चीज़ के लिए फॉर एन एग्जांपल मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है, नुकसान अगर फायर की वजह से हुआ है तो ही मुझे उसका क्लेम कर सकती हूँ, उसका पेमेंट मिलेगा, लेकिन किसी और चीज़ की वजह से वो बर्बाद हो गई चीज़ तो वो मुझे नहीं मिलेगा, मैं क्लेम नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो दिस वर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है यू कैन कॉल मी और एल्स अगेन आई विल रिवाइज इन द लेक्चर।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. सी दिस आर द डिफरेंट टाइप्स जो आपको याद रखने हैं. टोटल है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के जो हम अपने लाइफ के लिए लेते हैं. जनरल इंश्योरेंस है, उसमें मरीन, फायर, अदर इंश्योरेंस में भी बहुत हैं. तो सबसे पहले आज जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे लाइफ इंश्योरेंस. The insurance company insures the life of a person in exchange for a premium which may be paid in one lump sum or periodically. Under life insurance, the amount of insurance is paid on the maturity of policy or the death of policy holder, whichever is earlier. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे आपने ये कई बार एडवर्टाइज में ये टैगलाइन सुना होगा कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी. ठीक है, ये क्या है कि हम क्या होता है कि हमारी लाइफ में अभी क्या होता है कि सोल अर्नर मतलब कि एक ही पर्सन कमाता है, एक ही पर्सन के ऊपर घर चलता है. अगर उस एक पर्सन का डेथ हो गया तो उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, ये सोचना बहुत ज़रूरी है. कि आज वो ज़माना नहीं रहा कि 80-90 ईयर्स वी आर सर्वाइविंग. कुछ भी हो सकता है, किसी को अटैक आ जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ भी हो सकता है. लाइफ इज़ अनसर्टेन. इसीलिए हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, राइट. तो उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स वाई लाइफ इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. ठीक है, तो आपको लाइफ टाइम वो सेफ्टी रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मेरी फैमिली को इंश्योरेंस तो मिलेगा ही, राइट. तो अब यहाँ पे दो तरह के होते हैं कि दो तरह के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, वो हम समझेंगे. एक है होल लाइफ पॉलिसी, दूसरा है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. होल लाइफ पॉलिसी क्या है? Under this policy, the sum insured is not payable earlier than the death of the insured. The sum becomes payable to the heir of the deceased. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, अब मेरी डेथ हो गई, उसके बाद मेरी फैमिली को वो पैसे मिलेंगे. जब तक मेरी डेथ नहीं होती है उससे पहले और उसका पैसा नहीं मिलता है. ठीक है, जिसका जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसका डेथ होगा, उसके बाद उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा. तो उसको क्या बोलते हैं? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. उसके बाद है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. अब एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड undertakes to pay the assured to his heirs or nominee as a specified sum on the attainment of a particular age or on his death, whichever is earlier. देखो यहाँ पे आपको, आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस में जाएंगे आपको कंपनी दो ऑप्शन देती है. एक ऑप्शन होता है जहाँ आपको कंपनी बोलती है कि आपको क्या लेना है, कि आपका डेथ हो गया उसके बाद आपको फैमिली को पैसा मिले. या तो कई बार ऐसा होता है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब तो सबके पास है नहीं. आफ्टर सर्टेन एज इंसान क्या करेगा? अगर 60 ईयर्स पे पहुंच गया, द पर्सन कैन नॉट अर्न. ओके, तो उस टाइम पे उसके पास इनकम क्या, अपने लाइफ जीने के लिए उसके पास इनकम क्या है? हाँ, तो तब कुछ नहीं होगा, तो ना उसके पास पेंशन है ना कुछ है, तो क्या करना चाहिए? तो लाइफ इंश्योरेंस में अब दो ऑप्शंस आते हैं. एक ऑप्शन होता है कि जहाँ आपको बोलते हैं कि अगर आपका डेथ हो जाता है तो उसके बाद आपकी फैमिली को पैसे दे देंगे अगर सर्टेन एज तक. अगर आपका डेथ नहीं होता है तो अगर आप 60 ईयर्स पे पहुँचेंगे, फॉर एन एग्जांपल 60 ईयर्स, अगर आप 60 ईयर्स पे पहुँचेंगे तो उस 60 ईयर्स पे व्हाट वी वुड बी डिसाइडिंग, हम 60 ईयर्स पे पहुँचेंगे तो आपको हम एक लमसम अमाउंट दे देंगे. इससे क्या होगा कि अगर मैं 60 ईयर्स तक इफ़ आई एम सर्वाइविंग तो मुझे पैसे मिल जाएंगे. हाँ, अगर 60 ईयर्स से पहले मेरा डेथ हो गया तो क्या हो जाएगा? मेरी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे. तो आपका इसमें क्या होता है, आपका जो बुढ़ापा है वो भी सिक्योर हो गया, और अगर आप सर्वाइव कर गए तो आपकी फैमिली भी सिक्योर, आप नहीं सर्वाइव कर पाए सॉरी, तो आपकी फैमिली भी सिक्योर्ड है. तो इसीलिए एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज़ दैट वी कैन गो विथ. जॉइंट लाइफ पॉलिसी और एनुअल पॉलिसी भी टाइप्स हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी. चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, ये सारे नाम हैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कि ये सारे नाम हैं, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस में हमारे सिलेबस में जो है ये मेन है होल लाइफ पॉलिसी और एंडोमेंट. अब नेक्स्ट जो है वो है फायर इंश्योरेंस. दैट ऑल कम्स इन जनरल इंश्योरेंस. दैट वी वॉन्ट स्टडी टुडे, दैट विल स्टडी टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.